آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، ٹرمپ کو دیا 2 پیجر ڈیوائسز کا تحفہ۔ دہلی کی تمام 70 اسمبلی سیٹوں پر ووٹنگ ختم، مختلف چینلز اور ریسرچ اداروں کی ایگزٹ پول جاری۔ آندھرا پردیش کے مغربی گوداوری ضلع میں تقریباً 4 لاکھ مرغیاں ہلاک، تحقیقات جاری۔ RTC بس میں پیدا ہونے والی لڑکی کو لائف ٹائم ریاست بھر میں مفت سفر کی سہولت فراہم، RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار نے کیا بس پاس حوالے۔ شادی کی تقریب کے لیے بینک سے نکال کر لے جانے والی رقم کی چوری، تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع میں پیش آیا واقعہ۔ سرخیوں کے بعد اب پیش ہے خبروں کی تفصیلات۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی، جس میں انہوں نے ٹرمپ کو 2 پیجر ڈیوائسز کا تحفہ دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق نیتن یاہو نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک سنہری پیجر اور ایک عام پیجر تحفے میں دیا، جو کہ گزشتہ سال لبنان میں حزب اللہ کے خلاف ہونے والے پیجر دھماکوں کا حوالہ تھا۔ امریکی صدر نے تحفے پر رد عمل دیتے ہوئے پیجر دھماکوں کی تعریف کی اور کہا کہ وہ بہترین آپریشن تھا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اسماعیلی مسلم فرقے کے مذہبی رہنما آغا خان چہارم کے انتقال پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا اور ان کے پیروکاروں اور مداحوں سے تعزیت کا اظہار کیا۔ اپنے تعزیتی پیغام میں نریندر مودی نے کہا کہ ہزہانس پرنس کریم آغا خان چہارم کے انتقال سے گہرا دکھ ہوا ہے۔ وہ ایک ویژنری تھے جنہوں نے اپنی زندگی خدمت اور روحانیت کے لیے وقف کر دی تھی۔ دہلی کی تمام 70 اسمبلی سیٹوں پر ووٹنگ ختم ہونے کے بعد اب مختلف چینلز اور ریسرچ ادارے ایگزٹ پول جاری کر رہے ہیں۔ ابھی تک جاری کئی ایگزٹ پولز میں بی جے پی اور عام آدمی پارٹی میں کانٹے کی ٹکر نظر آ رہی ہے۔ ایگزٹ پولز دہلی اسمبلی انتخابات کے نتائج کے بارے میں ایک طرح کے اندازے ہوتے ہیں۔ کئی بار ایگزٹ پولز غلط اور کئی بار صحیح بھی ثابت ہوتے ہیں۔ دہلی اسمبلی انتخابات کے حقیقی نتائج 8 فروری کو اعلان کیے جائیں گے۔ میٹرکس کے ایگزٹ پول میں عام آدمی پارٹی کو 32 سے 37 سیٹیں ملنے کا اندازہ ہے۔ اس کے علاوہ بی جے پی کو 35 سے 40 سیٹیں اور کانگریس پارٹی کو 0 سے 1 سیٹ مل سکتی ہے۔ پیپلز پلس ایگزٹ پول کے مطابق بی جے پی کو 51 سے 60، عام آدمی پارٹی کو 10 سے 19 اور کانگریس کو 0 سیٹ ملنے کا اندازہ ظاہر کیا گیا ہے۔ پول ڈائری کے مطابق عام آدمی پارٹی کو 18 سے 25، بی جے پی کو 42 سے 50 اور کانگریس پارٹی کو 0 سے 2 سیٹیں ملنے کا اندازہ ہے۔ آندھرا پردیش کے مغربی گوداوری ضلع اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں گزشتہ 45 دنوں میں تقریباً 4 لاکھ مرغیاں ہلاک ہو گئی۔ محکمہ افزائش مویشیات نے اس کی وجہ معلوم کرنے کے لیے نمونے جانچ کے لیے بھیجے۔ محکمے کے ڈائریکٹر دامودر نائیڈو نے کہا کہ نمونے بھوپال اور وجے واڑہ کے لیب میں بھیجے گئے ہیں تاکہ ان اموات کی وجہ سے بیماری کی تصدیق ہو سکے۔ انہوں نے بتایا کہ کسان بائیو سیکیورٹی کے اقدامات کو بھی نظر انداز کر رہے ہیں، جو کہ بیماریوں کے پھیلاؤ کی بنیادی وجہ ہے۔ بعض کسانوں نے مردہ مرغیوں کو نہروں میں اور گلیوں میں کچرے کے ڈھیروں میں پھینک دیا، جس سے انفیکشن پھیلتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بنیادی احتیاط کو نظر انداز کیا گیا، جس کے نتیجے میں عام طور پر مرغیوں کی موت ہوتی ہے۔ سرکاری طور پر اس موسم میں پرندوں کی موت ہوتی ہے اور ہر سال یہ ہوتا ہے۔ چیف منسٹر ریونت ریڈی نے ممتاز روحانی پیشوا اور پدم بھوشن ایوارڈ یافتہ پرنس آغا خان کے انتقال پر انہیں خراج پیش کیا۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ان کا انتقال انسانیت کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ آغا خان کو ایک مشہور سماجی جہدکار اور انسان دوست کے طور پر دنیا بھر میں خصوصی پہچان ملی۔ ریونت ریڈی نے کہا کہ آغا خان فاؤنڈیشن کے ذریعے مختلف ممالک میں اسپتال، تعلیمی اور ثقافتی ادارے قائم کرتے ہوئے معاشرے کے لیے عظیم خدمات انجام دی گئی۔ چیف منسٹر نے کہا کہ غربت کے خاتمے، ورثے کے تحفظ، طبی خدمات اور تعلیم کے شعبوں میں آغا خان کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ حیدرآباد میں آغا خان فاؤنڈیشن کے زیر انتظام ادارے قابل ستائش ہیں۔ ریونت ریڈی نے اعلیٰ اقدار پر عمل کرنے پر آغا خان کی ستائش کی، جنہوں نے زندگی بھر انسانیت کے وقار کو اونچا کیا۔ چیف منسٹر نے ان کے پسماندگان لواحقین سے دلی تعزیت کا اظہار کیا۔
चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जुमेरात को कांग्रेस पार्टी के एमएलएस के साथ इजलास मुनक्किद करेंगे। हैदराबाद में मरी चिन्ना रेड्डी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में दोपहर 3 बजे से शाम 7 बजे तक एमएलएस के साथ ये प्रोग्राम मुनक्किद होगा। चीफ मिनिस्टर के साथ एआईसीसी इंचार्ज दीपादास मुंशी, टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ और नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। बल्दिया के इंतखाबात, पार्टी तंजीमी ढांचा और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आदिलाबाद, निजामाबाद और खम्मम अजला के एमएलएस के साथ 3 ता 4 बजे शाम और करीमनगर और वरंगल के एमएलएस के साथ शाम 4:15 से 5:15 तक इजलास होगा। बादशाह शाम 5:30 ता 6:30 तक वो नलगोंडा, हैदराबाद और मेदक अजला के एमएलए से मुलाकात करेंगे। बाद शाम 6:45 से 7:45 तक रंगारेड्डी और महबूब नगर अजला के एमएलए से मुलाकात करेंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने जात पात पर मबनी सर्वे को तेलंगाना रियासत का एक्सरे करार दिया, जिससे मुख्तलिफ तबकात बिलखुसूस पसमानदा तबकात के बरसों से पाए जाने वाले मसाइल की यकसवी मुमकिन है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इंतहाई मुनज़्ज़म अंदाज में ये सर्वे करवाया गया है। 1 लाख अमले ने इस सर्वे में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि यह सर्वे किस तरह करवाया गया बहुत जल्द मीडिया को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए बताया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान तेलंगाना के अवाम से जात पात के सर्वे का वादा किया था। इस वादे के मुताबिक कांग्रेस हुकूमत ने इख्तिदार में आने के 1 साल के अंदर ये सर्वे करवाया। ये सर्वे कोई जल्दबाजी में नहीं करवाया गया, इस पर तफसीली तबादले ख्याल किया गया। तेलंगाना की वजीर पंचायत राज व देही तरक्की सीतक्का ने हैदराबाद में कांग्रेस रियासती सदर दफ्तर गांधी भवन में अवाम के साथ रूबरू प्रोग्राम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने जोर देते हुए कहा कि गांव की सतह पर दरखास्तें वसूल करने के अलावा वज़रा बराह रास्त गांधी भवन में भी दरखास्तें कबूल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रूबरू प्रोग्राम में शिरकत करने का यह दूसरा मौका था। इससे पहले किसी पार्टी में ऐसा निज़ाम नहीं था। अवामी हुकूमत के एक हिस्से के तौर पर कांग्रेस हुकूमत हफ्ते में 2 बार प्रजावानी प्रोग्राम का एहतमाम करती है। उन्होंने कहा कि अवाम की तरफ से उठाए गए बेशतर मसाइल अराजियात के तनाज़ात और समाजी खदशात से मुताल्लुक थे। गलत नामों पर अराजी के रजिस्ट्रेशन के बारे में मुतअद्दिद शिकायत हैं। कई किसान कर्ज की माफ़ी के लिए दरखास्तें दे रहे हैं, जो केसीआर के दौर में हल नहीं हुए थे। उन्होंने निशानदेही की कि कांग्रेस हुकूमत के इख्तिदार में आने के बाद 21,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ कर दिए गए। 2016 में कर्ज लेने वाले लाखों किसानों को केसीआर की इंतजामिया के दौरान माफी नहीं मिली थी। खवातीन के अंडर 19 आलमी क्रिकेट कप में नुमाया मुजाहरा करने वाली क्रिकेटर त्रिशा ने चारशंबे को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से उनकी जुबली हिल्स में वाक़ ख़यामगाह पर खैर सगाली मुलाकात की। चीफ मिनिस्टर ने त्रिशा को हाल ही में मुनक़िदा अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। चीफ मिनिस्टर ने त्रिशा से ख्वाहिश की कि वो क्रिकेट के मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करे और मुस्तकबिल में मुल्क का मजीद नाम रोशन करे। इस मौके पर उन्होंने क्रिकेटर त्रिशा के लिए 1 करोड़ रुपए और तेलंगाना की अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम की रुकन ध्रुवती केसरी को 10 लाख रुपए के नकद इनाम का ऐलान किया। अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम की हेड कोच नौशीन और ट्रेनर शालिनी को भी 10-10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। तेलंगाना में असातिज़ा के अहलियती इम्तिहान टेट के नताइज जारी कर दिए गए। ये इम्तिहान 2 जनवरी से 20 जनवरी तक रियासत भर में मुनक्किद हुए थे और हालिया दिनों महकमे तालीम की जानिब से मजमूनवारी असास पर प्राइमरी की और रिस्पॉन्स शीट्स जारी किए गए। 27 जनवरी तक प्राइमरी की पर एतराज़ात कबूल किए गए और ताज़ा तौर पर फाइनल की और नताइज का ऐलान किया गया। टेट इम्तिहान में 1,35,802 उम्मीदवारों ने इम्तिहान लिखा था, जिनमें 42,384 उम्मीदवार यानी 31.21% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। मजीद बताया गया कि पेपर 1 में 59.48% और पेपर 2 में 31.21% उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल की। आरटीसी बस में पैदा होने वाली लड़की को लाइफ टाइम रियासत भर में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम करने वाले बस पास को आरटीसी के मैनेजिंग डायरेक्टर वीसी सज्जनार ने हवाले किया। गदवाल डिपो की बस 2 जनवरी को रायचूर से गदवाल आ रही थी। बस में सफर करने वाली हामिला खातून को
दर्द के सबब दरमियान में बस को रोक दिया गया। इस मौके पर बस कंडक्टर केशव कुमार और बस ड्राइवर सुरेंद्र गौड़ ने बस को सड़क के किनारे खड़ा कर दिया और 108 एम्बुलेंस को इसकी इत्तला दी। एम्बुलेंस के पहुंचने तक खातून के दर्द में मजीद इजाफा हो गया, जिस पर ड्राइवर और कंडक्टर ने बस में सवार दीगर खातून मुसाफिरीन की मदद से हामिला खातून की बस में ही ज़दगी करवाई। खातून ने लड़की को जन्म दिया। बादअज़ां उन्हें करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। इस लड़की की बस में पैदाइश पर आरटीसी की जानिब से जिंदगी भर आरटीसी बस में मुफ्त सफर की सहूलत के बसपास को इनके रिश्तेदारों के हवाले किया गया। इस मौके पर सज्जनान ने बस कंडक्टर और ड्राइवर को तहनीत पेश की। रियासती हाई कोर्ट ने शहर की पंजागुट्टा पुलिस को हिदायत दी कि वो 12 फरवरी तक बीआरएस लीडर और साबिक वजीर हरीश राव को गिरफ्तार न करे। फोन टैपिंग करने के इल्जाम में हरीश राव के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया था। इस मुकदमे को खारिज करने की दरख्वास्त करते हुए हरीश राव हाई कोर्ट से रुजू हुए थे। आज इस केस की समाअत हुई। इस मौके पर अदालत ने हरीश राव को गिरफ्तार करने के अबूरी अहकामात में तौसीक की और इस केस की समाअत 12 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जिले संगारेड्डी में आज उस वक्त हल्की कशीदगी देखी गई जब बीआरएस एमएलए सुनीता रेड्डी ने पार्टी लीडरों के साथ जिले के नालावली के गांव वालों से मिलकर डंपिंग यार्ड के खिलाफ एहतजाज की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें तहवील में ले लिया और गांव के बाहर लाकर छोड़ दिया। बड़ी तादाद में बीआरएस लीडरों के साथ सुनीता रेड्डी गांव में डंपिंग यार्ड की मुखालिफत करने गांव पहुंची। ताहम पुलिस ने उन्हें गांव में दाखिल होने से ये कहते हुए रोक दिया कि दफा 144 सीआरपीसी नाफिज है। పోలీస్ రాజ్యంగా ప్రజాపాలన రాజ్యం కాదు ఇది. పోలీస్ రాజ్యం మరి దీని ద్వారా మరి शादी की तकरीब के लिए बैंक से निकाल कर ले जाई जाने वाली रकम पर मुश्तमिल बैग की चोरी 2 व्हीलर से कर ली गई। ये वाकया तेलंगाना के नारायणपेट जिले में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक नारायण नामी शख्स ने अपने रिश्तेदार की शादी के सिलसिले में बैंक से 4 लाख रुपए निकाले। वो अपनी 2 व्हीलर पर रकम का बैग लेकर जा रहा था। इसने दुकान से कुछ खरीदने के लिए अपनी गाड़ी को रोका और दुकान पर पहुंचा। इसी दौरान नामालूम शख्स इसकी 2 व्हीलर से रकम पर मुश्तमिल बैग लेकर फरार हो गया। ये वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। नारायण की शिकायत पर पुलिस ने एक मामला दर्ज कर दिया और इस नामालूम चोर की तलाश शुरू कर दी। हैदराबाद तिरुपति तैयारे में तकनीकी खराबी के सबब रवानगी में ताखिर हुई, जिस पर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर 47 मुसाफिरों ने एहतजाज किया। यह तैयारा चारशुमे की सुबह 5:30 बजे रवाना होने वाला था। ताहम इस तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हो गई, जिसके नतीजे में इसकी रवानगी में ताखिर पर मुसाफिरीन में तशवीश की लहर दौड़ गई। इन मुसाफिरीन ने तैयारे की रवानगी में ताखिर पर एहतजाज किया। मुसाफिरीन ने कहा कि इस तकनीकी खराबी की वजह से वो 4 घंटे एयरपोर्ट पर फंसे रहे। उन्होंने एयरलाइंस के रवैये पर नाराजगी का इजहार किया। माधापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में चारशंबे को एक 22 साल लड़की ने खुदकुशी कर ली। इसकी शिनाख्त मगरबी बंगाल की रहने वाली वो गच्चीबावली के सिद्दीक नगर में एक प्राइवेट हॉस्टल में मुकीम थी। इसने हॉस्टल के अपने कमरे में खुदकुशी कर ली। इतला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया। शहर हैदराबाद के एलबी नगर में चारशंबे को एक सेल्लार की तामीर के दौरान मलबा गिरने के एक अलमनाक वाक़े में 3 मजदूर हलाक और एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स की शिनाख्त दशरत के तौर पर की गई है, जिसे इलाज के लिए एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया। शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के बेशतर अजला में दर्जे हरारत में अचानक इजाफा हुआ है। फरवरी के आगाज से ही मौसम गर्मा का आगाज हो गया है। रियासत भर में दर्जे हरारत 32 था 36 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो रहा है। महकमे मौसमियात के हुनदारों के मुताबिक फरवरी में मामूल के मुताबिक 3 था 4 डिग्री सेल्सियस दर्जे हरारत ज्यादा रिकॉर्ड हो रहा था। हैदराबाद के अलावा अजला, निजामाबाद, हनमकोंडा और मेदक के कई मकामात पर दर्जे हरारत में इजाफा देखा गया। उहदेदारों ने बताया कि आइंदा 1 हफ्ते तक दिन का दर्जे हरारत इसी तरह बरकरार रहेगा। इसके बाद कमी आने का इम्कान है। इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू की अमेरिका सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप को दिया 2 पेजर डिवाइसेस का तोहफा।
دہلی کی تمام 70 اسمبلی سیٹوں پر ووٹنگ ختم، مختلف چینلز اور ریسرچ اداروں کی ایگزٹ پول جاری۔ آندھرا پردیش کے مغربی گوداوری ضلع میں تقریباً 4 لاکھ مرغیاں ہلاک، تحقیقات جاری۔ RTC بس میں پیدا ہونے والی لڑکی کو لائف ٹائم ریاست بھر میں مفت سفر کی سہولت فراہم، RTC کے مینیجنگ ڈائریکٹر VC سجنار نے کیا بس پاس حوالے۔ شادی کی تقریب کے لیے بینک سے نکال کر لے جانے والی رقم کی چوری، تلنگانہ کے نارائن پیٹ ضلع میں پیش آیا واقعہ۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔